students, our today's topic is sentence structure. Sentence structure, components, types and examples. Having learned the parts of speech in the English language, not knowing how to use them and where to place each part of speech to form a sentence wouldn't be ideal. अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करके मैं एक सेंटेंस कैसे बना सकता हूँ, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट क्लियर करने का, उनका नॉलेज होने का, उनकी इन्फॉर्मेशन होने का कोई बेनिफिट नहीं है. Whenever you have to communicate to next person, आपको किसी से भी बात करनी है तो आपको सेंटेंस की फॉर्म में बात करनी पड़ती है, जुमला बना के. तो आज हम देखेंगे कि हम उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करके कैसे सेंटेंस बना के, जुमला बना के अपनी बात कर सकते हैं. In fact, sentence structure is one among the most important grammatical components that acts as the foundation of a language. जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सब में हम एक जुमला बना के ही बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कंपोनेंट है. So here is what you need to know. In this article, you will learn what a sentence structure is and the different sentence structures. You will also find examples for every sentence structure that you can refer to. Also try out the practice questions given. Table of contents. What do you mean by sentence structure? Basic parts and components of a sentence. Parts of a sentence: subject, predicate. Components of a sentence: subject, verb, object, complement and adjunct. What do you mean by sentence structure? पहले ये देखते हैं कि sentence structure जो है वो क्या होता है. Sentence structure is a grammatical component that tells you exactly where and how each component of a sentence should be placed in order to blend and make sense. स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ कैसे बनाई गई है. अब हम देखेंगे कि सेंटेंस में जो हमने पार्ट्स लगाने हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करने वो हमने सेंटेंस में किस सीक्वेंस के साथ उनको लिखना है कि एक हमारा सही सेंटेंस बन जाए. The Collins Dictionary defines sentence structure as the grammatical arrangement of words in sentence. ग्रामर के लिहाज से वर्ड्स को सीक्वेंस में लिखना, इसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे. इन अदर वर्ड्स, द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज व्हाट डिफाइंस द वे a sentence will look and sound. Basic parts and components of a sentence. Before we look into how sentence structure works, we will have to listen first about the basic structure of a sentence and the components that make up a sentence. पहले हम देखेंगे कौन कौन से components हैं जिनकी वजह से एक sentence बनता है. Parts of a sentence. A sentence in the English language consists of at least a subject and a predicate. In other words, a sentence should have a subject and a verb. ज़्यादातर क्या होता है, एक simple sentence में एक predicate होता है, एक subject होता है. Subject. The subject can be a noun or a pronoun that does the action. आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक sentence क्या होता है, a group of words होता है that convey our meaning, that is complete in itself, जो अपना meaning खुद convey करता है by usage of certain words, कुछ words को, कुछ अल्फाजों को इस्तेमाल करके. अब जो हमारा subject होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि फिक्रे में जो बंदा काम कर रहा होता है या जिसके बारे में फिक्रा लिखा गया होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो. फॉर एग्जाम्पल, द सन इज शाइनिंग. सूरज जो है वो शाइन कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए शाइनिंग हो रही है, और शाइनिंग कौन कर रहा है? सन कर रहा है. सन इज अ सब्जेक्ट. देन द स्काई इज क्लियर. स्काई जो है वो काफ़ी साफ है, आसमान साफ है. तो क्या चीज़ साफ है? आसमान. तो यहाँ पे सेंटेंस किसके बारे में लिखा गया है? स्काई के बारे में. तो जो द स्काई है दैट इज अ सब्जेक्ट. टुडे इज वेंसडे. आज क्या है? आज बुध है, वेंसडे है. यहाँ पे जो बात बताई गई है कि आज बुध है, तो किस चीज़ के बारे में बताई गई है? आज के बारे में. सो हियर टुडे इज अ सब्जेक्ट. देन प्रेडिकेट. द वर्ब इन द एक्शन performed by the particular subject in the sentence. Predicate क्या होता है? It consists of verb and object. अब आप ये देखें कि एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं. अगर हम देखें तो लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये मेन पार्ट्स होते हैं. एक काम करने वाला होता है, एक काम हो रहा होता है, और जिस चीज़ पे काम का इफेक्ट पड़ रहा होता है, जिस चीज़ पे काम किया जा रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है. जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अलावा सेंटेंस में बाकी जितनी भी चीज़ें आएंगी, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कंप्लीमेंट आएगा, वो सारी चीज़ें प्रेडिकेट होती हैं. सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट होता है, क्योंकि प्रेडिकेट इज समथिंग दैट गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सब्जेक्ट. जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, उसके बारे में हम जो भी बात कर रहे हैं वो सारा हमें कौन बताता है? प्रेडिकेट बताता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लव मैक्रोनी एंड चीज़. यहाँ पे अगर आप देखें तो आई मेरा सब्जेक्ट है एंड लव मैक्रोनी एंड चीज़, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आई के बारे में. लव मैक्रोनी एंड चीज़ ये पूरा ही एक प्रेडिकेट है. देन मैरिन हैज़ अ पेट. मैरिन के पास एक जो है पेट है,
मेरीन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड हैज अ पेट ये पूरा प्रेडिकेट है। देन अनुषा कैन ड्रा, अनुषा क्या कर सकती है, ड्रा कर सकती है। अनुषा इज अ सब्जेक्ट और कैन ड्रा पूरा हमारे पास प्रेडिकेट है। देन वी हैव टू टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। Like a sentence has two parts, it has 5 main components that make up the structure of a sentence, and they are subject, verb, object, complement and adjunct. Now let us look at each of these components in detail. थोड़ा डिटेल में इनका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। Subject, a noun that performs the action in a sentence is considered as a subject. एक नाउन जो फिक्रे में काम कर रहा होता है। It answers the question who, or in other words, a subject can be identified by asking the question who, कि फिर कौन काम कर रहा है, इसका आंसर हमें कौन देता है, सब्जेक्ट देता है कि ये बंदा काम कर रहा है। A subject takes the first place in most cases, especially in declarative or assertive sentences. ज़्यादातर फिक्रे में हम सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, especially declarative और assertive sentences में। For example, the child kept crying. बच्चा रोता ही रहा। The child, कौन रो रहा है, child. The child is subject. Our school team won the match. हमारी स्कूल की टीम ने मैच जो है वो जीत लिया। तो यहाँ पे देखें किसने जीता है, स्कूल टीम ने। तो स्कूल टीम क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई सन इज इन द 8th grade. कौन 8th grade में है, माई सन। माई सन क्या है, सब्जेक्ट है। हार्ड वर्क पेस, क्या चीज पे करती है, किसकी वजह से हमें एक सिला मिलता है, रिटर्न मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज अ सब्जेक्ट। देन नो वन केम टू द वेडिंग, कोई भी शादी पे नहीं आया। नो वन, कोई भी नहीं आया, सब्जेक्ट है नो वन। देन हमारा आ गया जी वर्ब। इन एवरी सेंटेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कैन बी सेड टू बी द वर्ब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है, एक अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं या एक लफ्ज होता है फिक्रे का, वो वर्ब होता है, क्योंकि वर्ब हमें बताता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, कोई बंदा जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या काम कर रहा है। A verb shows action or activity or work done by the subject. Remember that all verbs including main verbs, helping verbs, stative verbs and action verbs come under this category. जितनी भी types of verbs हैं वो सारे verbs ही होते हैं। Most often verbs appear immediately after the subject. क्योंकि वर्ब है और आगे इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, तो सारी बातें वो सारी भी एक्शन ही शो करवाती हैं, वर्ब होता है वो। और ज़्यादातर हम वर्ब को कहाँ पे सेंटेंस में लिखते हैं, आफ्टर द सब्जेक्ट। जो बंदा काम कर रहा है उसका नेम लिखेंगे, उसके बाद ही हम उसका एक्शन लिख देते हैं, वर्ब लिख देते हैं कि उसने क्या काम किया। फॉर एग्जाम्पल, नीना इज राइटिंग अ लेटर। नीना जो है वो क्या कर रही है, राइटिंग कर रही है अ लेटर। राइटिंग क्या है, वर्ब है। इट वॉज टू डार्क, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। वाज यहाँ पे वर्ब है। I feel tired, क्या किया गया है कि मैं बहुत ही ज़्यादा जो है या थोड़ा बहुत जो है मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो फीलिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है, फील किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। My phone is not working, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा। Not working यहाँ पे क्या है, वर्ब है, मेनली वर्किंग। फिर Terence dog ran away, Terence का जो डॉग है वो मतलब भाग गया, दूर भाग गया। तो रैन क्या है, यहाँ पे क्या एक्शन हुआ है, भागा गया है। तो रैन क्या है, वर्ब है। देन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। फिक्रे में जो बंदा काम कर रहा है उस चीज़ का किस चीज़ पे, उस एक्शन का किस चीज़ पे इफेक्ट हो रहा है, किस चीज़ पे काम कर रहा है, चाहे वो नाउन पे काम कर रहा है या प्रोनाउन पे काम कर रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स एंड दे आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Direct object, a noun or pronoun that receives the action directly is the direct object in the sentence. Sometimes ऐसे फिक्रे होते हैं जिसमें 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ऐसा होता है कि एक बंदा काम कर रहा है तो डायरेक्टली जिस चीज़ पे वो काम कर रहा है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, कि क्या किया गया और किस चीज़ पे असर हुआ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स मोस्टली अपीयर इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब एंड आर द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस। जो हमारा वर्ब होता है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो मेनली उसके फौरन बाद उसको हम लिखते हैं, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैरी बाउट अ न्यू कार, हैरी ने एक न्यू कार ली। अब यहाँ पे बाउट एक्शन कौन सा है, बाउट, कोई चीज़ खरीदना, और क्या चीज़ खरीदी गई है, कार। तो कार पे असर हो रहा है, कार को लिया जा रहा है, कार को खरीदा गया है, तो कार इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन माई मॉम मेड अ केक, मेरी मामा ने केक बनाया। केक क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या चीज़ बनाई गई है, केक। देन आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिली या मिला, तो किसको मिला गया है, फ्रेंड को।
तो माई फ्रेंड यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। देन शी नोज ऑल द सॉन्ग्स, सारे सॉन्ग्स जानती है, उसको सारे सॉन्ग्स के बारे में पता है। तो ऑल द सॉन्ग्स यहाँ पे किस चीज़ को जानती है, सॉन्ग्स को। ऑल द सॉन्ग्स इज ऑब्जेक्ट हियर एंड इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक मूवी देखी, तो किस चीज़ को देखा गया है, मूवी को। मूवी इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन होम। When there is an indirect object in a sentence, it is mostly placed after the verb and before the direct object. Sometime ऐसा होता है, हमारे पास verb लिखा गया, उसके बाद हमारे पास पहले indirect object आ रहा होता है कि किस चीज़ के साथ काम किया गया या किस चीज़ पे काम किया गया। फर्दर नेक्स्ट हमारे पास उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। अब भी आप एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे मजीद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वंदाना गेव किरथाना आ केक। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है केक है, क्योंकि क्या चीज़ दी गई है, केक दिया गया है। और फिर होम किसको दिया गया है, किरथाना को। ठीक है, तो किरथाना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो चीज़ दी गई है, केक दिया गया, केक इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन माई मॉम बाउट मी अ न्यू ड्रेस, मेरी मामा ने मुझे न्यू ड्रेस ला के दिया। अब मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब जो मेनली चीज़ लाई गई है, क्या चीज़ खरीदी गई है, ड्रेस खरीदा गया है। तो एक्शन हमारे पास किस पे हो रहा है, ड्रेस पे हो रहा है, क्योंकि ड्रेस को खरीदा गया। ड्रेस हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आगे ड्रेस किसको दिया गया, टू होम, किसको, तो वो मी है, तो मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन आई गेव हिम अ चॉकलेट, यहाँ पे अगेन हिम हमारे पास क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और चॉकलेट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे गेव अस कॉफी विद ब्रेकफास्ट, अगेन हमारे पास अस जो है किसको दी गई, होम, अस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर हमारे पास कॉफी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देन ही लेंट हिज फ्रेंड द पेन, जो हिज फ्रेंड है दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पेन किसको दिया गया, फ्रेंड को। और फिर क्या चीज़ दी गई, पेन, तो पेन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेनली ऐसा होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारे पास वर्ब आ गया, उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ज़्यादातर केसेस में इस तरह ही सेंटेंस लिखा जाता है। देन कंप्लीमेंट, the words required to complete the meaning of a sentence can be referred to as the complement of the sentence. Verb और ऑब्जेक्ट वगैरह के अलावा जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में, जो अल्फाज जो है हम इस्तेमाल करते हैं अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए पूरा, ताकि समझ आ जाए नेक्स्ट पर्सन को कि हम क्या बात कर रहे हैं, वो सारा कंप्लीमेंट में आता है। अ कंप्लीमेंट कैन बी एन एडजेक्टिव, अ नेम, अ पोजीशन और अ प्रोफेशन। कोई भी जैसे एडजेक्टिव्स हैं या प्रपोजिशंस भी हम कह सकते हैं, सारे बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कंप्लीमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि वो हमें मीनिंग को पूरा करने में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट ग्रू डार्क। अब इट यहाँ पे अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सब्जेक्ट हो और ग्रू हमारा वर्ब है और डार्क हमारा यहाँ पे कंप्लीमेंट है, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इट ग्रू, कि क्या ग्रू, क्या ज़्यादा हुई, डार्कनेस हो गई। ठीक है, ही इज़ अ डेंटिस्ट। अभी हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि डेंटिस्ट है कोई। ही जो है डेंटिस्ट क्या है, कंप्लीमेंट है, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। फिर दैट्स हर डॉग ब्रूनो, यहाँ पे हमारे पास जो ब्रूनो है वो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, साथ डॉग का नेम मेंशन किया गया है, दैट इज अ कंप्लीमेंट। Complements are further divided into two types based on which component it speaks about. आगे इनकी भी 2 टाइप्स हैं। The 2 types of complement are subject complement and object complement. Subject complement. The complement which expresses the quality or identity or condition of the subject is called subject complement. इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट का मतलब है कोई भी ऐसा लफ्ज़, कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, उसकी क्वालिटी या उसकी कोई खूबी, बुराई या उसकी आइडेंटिटी है या उसकी पोजीशन वगैरह बता रहा होगा, वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल, शी इज़ अ डॉक्टर। अब ये लड़की के बारे में एक बात बताई जा रही है सब्जेक्ट के बारे में, तो डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। देन आई एम सिंधु, मैं सिंधु हूँ, तो सिंधु क्या है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। नंदू इज़ क्लेवर, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो क्लेवर है, होशियार है। क्लेवर क्या हो गया, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो गया। द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, स्टूडेंट्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो बड़े एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड इज़ अ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा जो है यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एक्साइटेड है, दैट इज़ अ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। देन माई ब्रदर इज़ अ टीचर, मेरा जो भाई है वो टीचर है। टीचर, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, दैट इज अ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। नाउ ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट,
The complement which expresses the quality or identity or condition of an object is called object complement. Subject के बारे में जो information देगा word वो क्या होगा subject complement, और जो information देगा हमारे object के बारे में वो होगा object complement. For example, they made her angry. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो object है वो her है, क्योंकि जो हर है वो लड़की है, उसको जो है गुस्सा दिलाया गया, ठीक है, या उसको उन्होंने नाराज़ किया, तो क्या किया, एंग्री. तो एंग्री क्या है, ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है. देन द स्टूडेंट्स इलेक्टेड श्रेया द क्लास लीडर. यहाँ पे द क्लास लीडर जो है वो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है. क्या किया गया, जो हमारे पास एक इलेक्टेड है, इलेक्टेड क्या हुआ, ये हमारा समझे मतलब ऑब्जेक्ट वर्ब है. तो श्रेया हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि श्रेया पे वर्क किया गया, उसको इलेक्ट किया गया, उसको उन्होंने सेलेक्ट किया. क्या करने के लिए, क्या बनाया उसको, द क्लास लीडर. तो ये हमें हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में, श्रेया के बारे में मजीद आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसको क्लास लीडर बनाया गया. क्लास लीडर इज ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट. दे नेम्ड देयर डॉटर थारा. थारा अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है. डाटर उनका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के बारे में आगे उसका नेम बताया गया, दैट इज सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट. मार्ली मेट हर फ्रेंड रेयान. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेंड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किसको मिला गया, फ्रेंड को, और फ्रेंड कौन सा है, रेयान. तो रेयान क्या है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, फ्रेंड हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन, उसका नेम बताया गया, दैट इज सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट. नोबडी फाउंड द मूवी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी है, क्योंकि किसको देखा गया, मूवी को. तो मूवी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में कि इंटरेस्टिंग. तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है. द लास्ट component of the sentence is adjunct. An adjunct is a word or phrase that gives more information about an action, an event, a quality and so on. अब जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में मजीद हमें इंफॉर्मेशन कौन देगा, एडजंक्ट. या क्वालिटी है, या इवेंट है, कोई भी स्टेट है, जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देगा, एडजंक्ट. In short, it can be said that these words can include adverbs and adverb clauses. क्योंकि आपको पता है एडवर्ब्स हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है हमारे वर्ब के बारे में, और एडजंक्ट भी हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में. इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब्स हैं, ये एडवर्ब जो क्लॉजेस होंगी वो एडजंक्ट कहलाती हैं. Adjuncts can be identified by asking questions when, where, why, how often and to what extent. अगर कोई चीज़ हुई है उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि where कहाँ हुआ, when कब हुआ, how कैसे हुआ, how often कितना ज़्यादा होता है, मतलब कब कब होता है, रेगुलरली होता है या मंथ में या ईयर में एक दफ़ा होता है, to what extent कितना ज़्यादा हुआ, ये सारे जो क्वेश्चन होंगे इनके आंसर हमें कौन देता है, एडजंक्ट देता है. When using adjuncts, keep in mind that adjuncts can be used in the beginning, middle or end of the sentence and that there can be more than one adjunct in a sentence. एक ही फिक्रे में एक से ज़्यादा adjuncts भी हो सकते हैं, और इनको हम फिक्रे में किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं. समटाइम शुरू में हम लगा देते हैं, शुरू में लिख देते हैं, समटाइम मिडल में, दरमियान में, और समटाइम एंड पे. Take a look at the following examples to understand how adjuncts can be used. Yesterday we met at the park. अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे we जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और met हमारा वर्ब है. और met के बारे में दो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि मिला गया, वो लोग मतलब मिले, उनकी मीटिंग थी, एक दूसरे को मिले. तो कब मिला गया, yesterday. Yesterday is an adjunct और adverb भी है. उसके साथ at the park, कहाँ पे मिला गया, पार्क में उनकी मीटिंग हुई है, पार्क में वो एक दूसरे को मिले, तो एट द पार्क भी एक एडजंक्ट है. इसका मतलब इस सेंटेंस में दो एडजंक्ट्स हैं. देन ही इज़ वेरी टायर्ड. वेरी क्या है, एडजंक्ट है. देन ड्यू टू हिज इल हेल्थ ही कुड नॉट कम होम फॉर क्रिसमस. उसकी जो तबीयत है वो ख़राब है, जिसकी वजह से वह क्रिसमस के इवेंट पे नहीं आ सका. तो किसकी वजह से नहीं आ सका, ड्यू टू हिज इल हेल्थ. ड्यू टू हिज इल हेल्थ इज़ अ एडजंक्ट. देन माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे. मेरे जो बाबा हैं वो डेली बेस पे न्यूज़पेपर रीड करते हैं. तो यहाँ पे किस चीज़ का आंसर दिया गया है कि हाउ ऑफन, के कितना, एवरीडे, डेली बेस पे कितना ज़्यादा काम मतलब डेली बेस पे होता है, या फिर हमारे पास वीक में एक दफ़ा होता है या मंथ में. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि एवरीडे होता है, तो एवरीडे इज़ एन एडजंक्ट. देन दिस वर्कआउट रूटीन इज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग. जो ये वर्कआउट की रूटीन है ये बहुत ही ज़्यादा थका देने वाली है.